السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو ہریانہ کے گروگرام میں کچھ ہولی کھیل رہے شرپسندوں نے مسجد کے باہر فائرنگ کر دی ہے، اور ایک اور خبر جو ہے کہ ایک مسلم طالب علم کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ خودکشی کو مجبور ہو گیا، اور یہ بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ خبر کہاں کی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ میں کیا کچھ چل رہا ہے، وہاں کس طریقے سے جنگ بندی کو لے کر کیا نئی اپڈیٹ سامنے آئے ہیں، اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کیا کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہریانہ کے گروگرام میں گزشتہ رات اس وقت علاقے میں ہلچل پیدا ہو گئی جب ہولی کی رات اسکارپیو پر سوار کچھ بدماشوں نے مسجد کے باہر فائرنگ کر دی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر پھر آس پاس کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ملزمان فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور تفتیش اس سلسلے میں شروع کر دی گئی ہے۔ الزام ہے کہ اسکارپیو سوار نے اپنی کار روکی اور دو نوجوان اس سے نیچے اترے اور مسجد کا گیٹ کھولنے کی انہوں نے کوشش کی۔ جب کسی نے کہا کہ مسجد کا گیٹ صبح کھول دیا جائے گا تو وہ غصے میں آ گئے اور بدتمیزی کرتے ہوئے واپس جانے لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے جو ہے گولی سے بندوق سے جو ہے وہ فائرنگ کر دی۔ حالانکہ اس واقعے میں کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے اس سے علاقے میں افراتفری کا ماحول ہے، جس کے بعد پولیس میں اس کی شکایت کر دی گئی ہے۔ ہٹنے کے بعد میں پھر وہ کہہ لگا کس کے چلاؤں گولی، کس کے مارو گولی، تو دوسرا بولے کوئی بات نہیں چھوڑ۔ تو یہ دو تین تو جو تھے بیچارے تو سائڈ میں ہوگا، میں یہیں کھڑا تھا، میرے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آیا، جو کہا انکل، بس اتنی بات کہہ کے یہاں تک آ کے یہاں فائر کر دیا، بس ادھر کی سائڈ میں کو۔ کتنے فائر ہوئے ہوں گے؟ ایک فائر ہوا۔ ایک فائر ہوا۔ ہاں۔ اور پولیس کو پھر آپ نے موقع پہ کیسے موقع بلایا، پھر پولیس کو فون کر کے بلایا 100 نمبر پہ، پھر ایس ایچ او کو فون کرا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کا پہلا واقعہ ہریانہ کے گروگرام میں نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی کچھ شرپسند عناصر نے مسجد کے قریب دو گھروں پر بھی پتھراؤ کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس تو درج کر لیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس ان ملزمین کے خلاف کب تک کارروائی کرتی ہے، انہیں کب تک گرفتار کرتی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رفح میں ایک گھر پر کی گئی بمباری میں 4 بچوں سمیت 30 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ شروع ہونے کے 6 ماہ بعد بالآخر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے قرارداد کو منظور کر لیا ہے۔ قرارداد میں غزہ میں اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان فوری جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی منظوری پر سعودی، ترکی، اردن سمیت عرب اور مسلم ممالک نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور مسئلہ فلسطین کے دیرپا حل پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی حماس نے بھی اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے مستقل جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ ہم قیدیوں کے تبادلے کے فوری عمل میں شامل ہونے کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کرتے ہیں، جو دونوں طرف کے قیدیوں کی رہائی کا باعث بنے۔ وہیں امریکہ جو ہر جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کر رہا تھا، اس بار اس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اس قرارداد منظور ہونے کے بعد اس نے کہا کہ قرارداد میں ہماری عدم دلچسپی کے باوجود غزہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہیں قرارداد منظور ہونے کے بعد اسرائیل نے اپنا پورا غصہ امریکہ پر نکال دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا کہ قرارداد کو ویٹو کرنے میں امریکہ کی ناکامی اپنے سابقہ موقف سے واضح پسپائی ہے، اور اس سے حماس کے خلاف جنگی کوششوں کے ساتھ 130 سے زائد مغویوں کی رہائی کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اور وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ پر امریکی موقف میں اس تبدیلی کے تناظر میں امریکہ جانے والے اسرائیلی وفد کو دورے سے بھی روک دیا ہے۔ یہ دورہ امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر کیا جانا تھا، اور اب نیتن یاہو کے اس فیصلے سے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اسرائیل کے امریکی دورے کو منسوخ کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اچھی مثال قائم نہیں کی گئی ہے اور اس سے انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل میں بند مختار انصاری کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ انہیں پیر کی آدھی رات کے بعد رانی درگاوتی میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے۔ وہ آئی سی یو میں زیر علاج بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں یو پی پولیس نے انتظامیہ نے میڈیکل کالج کے آئی سی یو زون کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہیں افسران اس تعلق سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
वहीं मुख्तार अंसारी की सेहत के हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान भी सामने नहीं आया है। 2 रोज़ कबल हुकूमत ने मुख्तार अंसारी के हिफाजती इंतजामात में गफलत बरतने पर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर्स को मुअत्तल भी कर दिया था। वहीं मुख्तार के वकला ने किसी नाखुशगवार वाक़े का भी खदशा जाहिर किया है। चंद रोज़ कबल मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि 19 मार्च को मिलने वाले खाने में जहरीला मादा मिलाया गया था। वहीं मुख्तार की सेहत तकरीबन 1 हफ्ते से मुसलसल बिगड़ रही है। और कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ हल्के से 5 मरतबा की रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। इससे कबल 13 मार्च को मुख्तार अंसारी को 1990 में असलहा लाइसेंस हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज़ात के इस्तेमाल से मुतालिक एक मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये 8वां मामला था जिसमें 5 बार के साबिक रुकन असम्बली को अदालत ने पिछले 2 सालों के दौरान मुजरिम करार देकर सज़ा सुनाई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये मौजूद बहस बात रही है कि क्या एक वज़ीर आला जांच एजेंसी की तहवील में रहकर भी रियासत की बागडोर संभाल सकता है। जेल से हुकूमत चलाने के अपने दावे को हकीकत बनाते हुए केजरीवाल ने महकमे सेहत के हवाले से एक और हिदायत आज जारी कर दी है। दिल्ली के वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल हिरासत में हैं, लेकिन वो दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर फ़िक्रमंद हैं। उन्होंने अस्पतालों में मुफ्त खून टेस्ट और सैंपल्स को लेकर कुछ हिदायत जारी की हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज़ भी दिल्ली के वज़ीर आतिशी ने भी कहा था कि उन्हें केजरीवाल ने एजेंसी की तहवील से पानी और सीवरेज से मुताल्लिक़ अवामी बहबूद के काम शुरू करने की हिदायत भेजी है। वहीं अब लगता है कि इस मामले में केजरीवाल की परेशानी में इजाफा होने वाला है। ईडी अब उनकी रिमांड से अहकाम जारी करने का नोटिस लेते हुए इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या ऐसा हुक्म जारी करना पीएमएलए कोर्ट की तरफ से दी गई हिदायत के दायरे में आता है या नहीं। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने ईडी और बीजेपी दोनों को निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर अपनी सियासत बंद कर दे। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली हुकूमत के वज़ीर आतिशी ने पूछा कि क्या ईडी कोई सियासी पार्टी है जो हर खबर को ज़राए के हवाले से मीडिया तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ईडी के पास कुछ है और उसे कुछ कहना है तो उसे मीडिया में जाने के बजाय चार्जशीट दाखिल करके जज के सामने कहना चाहिए। वहीं दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, बदुलवानी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के लीडरान व कारकुनान का दिल्ली में मुजाहरा जारी है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आपके कई लीडरान और कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, जबकि आपके लीडरान का इल्ज़ाम है कि उनके कारकुनान के घरों पर पुलिस जाकर उन्हें उनके घरों में नज़र बंद कर रही है। जबकि दूसरी जानिब केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी के कारकुनान ने भी एहतजाज किया है। बीजेपी के लोग अरुण जेटली स्टेडियम से दिल्ली सेक्रेटेरिएट तक मार्च निकालकर केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस ज़िम्न में बीजेपी की रियासती सदर रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि सेक्रेटेरिएट के पास बीजेपी कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का मोदी हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि डरा हुआ तानाशाह मुर्दा जमहूरियत बनाना चाहता है, तो अब शिवसेना ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को आइन के लिए नासूर करार दिया है। ईडी के जरिए दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप मुल्क भर में बड़ा एहतजाज करने जा रही है। वहीं ठाकरे ग्रुप के चीफ तर्जुमान ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली निकाली जाएगी और हम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं। ये डर है, उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज़्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। अब
जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज़्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। अडानी ग्रुप की कंपनी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अपनी पोजीशन को मजीद मजबूत करने के लिए एक और बंदरगाह में बड़ा हिस्सा हासिल किया है। गौतम अडानी की कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए की इक्विटी कीमत पर उड़ीसा में गोपालपुर पोर्ट में 95% हिस्सेदारी हासिल की है। अडानी पोर्ट्स गोपालपुर पोर्ट में रियल एस्टेट ग्रुप शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप से 56% और एक और ग्रुप से 39% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस डील की इंटरप्राइज वैल्यू 30,080 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये बंदरगाह खाम लोहा, कोयला, चूना पत्थर, एल्यूमिनाइट और एल्यूमिनिया समेत खुश्क बल्क कार्गो को हैंडल करती है। अडानी पोर्ट्स के मैनेजमेंट डायरेक्टर किरण अडानी ने कहा कि गोपालपुर पोर्ट अडानी ग्रुप के पैन इंडिया पोर्ट नेटवर्क ईस्ट कोस्ट बनाम वेस्ट कोस्ट कार्गो वैल्यूम को बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक को मजबूत करेगा। सिंगापुर में इस्राएली मिशन के जरिए किया गया एक फेसबुक पोस्ट उसके लिए दर्द सर बन गया। इस पोस्ट में इस्राएली मिशन ने कुरान के हवाले से इसराइल को फ़लस्तीन की सरजमीन का असल मालिक बताया था, जिस पर सिंगापुर के वज़ीर क़ानून और वज़ीर दाखिला ने इसराइल को सख्त फटकार लगाई है। उन्होंने उसे इसराइल के जरिए तारीख को नए सिरे से लिखने की हैरत अंगेज़ कोशिश भी करार दिया। वज़ीर क़ानून के फटकार के बाद सिंगापुर के अफसरान ने इसराइली सफारतखाने को फेसबुक से उस पोस्ट को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया, जिसके बाद इसराइल को वो पोस्ट हटाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं इसराइली मिशन की जानिब से किए गए इस पोस्ट में यहूदियों को सरजमीन फ़लस्तीन का असल मालिक करार दिया गया था। पोस्ट में ये लिखा गया था कि इस्लामी किताब कुरान में इसराइल का जिक्र कई बार आया है, जबकि फ़लस्तीन का जिक्र एक बार भी नहीं है। और इसी का हवाला देते हुए सफारतखाने ने दावा किया था कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर उनका हक है। उसी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर क़ानून ने सफारतखाने की सरजनिश की और कहा कि ये तारीख़ को दोबारा लिखने की हैरानकुन कोशिश है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें वो पोस्ट जो है वो डिलीट करना पड़ा। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले के एक स्कूल में प्रिंसिपल, 2 असातिज़ा और दीगर 2 अफराद की जानिब से हरासा और परेशान करके जिस्मानी व ज़हनी अजियत दिए जाने से दिल शिकस्ता होकर ख़ुदकुशी करने वाले एक तालिब इल्म अल्तमश बैग के वालिद की शिकायत पर टाल मटोल के बिलाखिर 14 दिनों बाद 5 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। प्रिंसिपल समेत 2 असातिज़ा और एक तालिबा के वालिदैन की जानिब से अल्तमश के साथ न सिर्फ मारपीट की गई थी, बल्कि उसे मुसलमान होने का ताना देते हुए कहा गया था कि तुम मुसलमान हरामखोर हो और मुसलमानों के बच्चे हमारे स्कूल में नहीं होने चाहिए। 9 मार्च को अकोला के सिंधी कैंप इलाके में वाक़ गुरु नानक विद्यालय के 9वीं जमात में पढ़ने वाले 15 साला तालिब इल्म अल्तमश बेग ने अपने घर में ख़ुदकुशी कर ली। अल्तमश के वालिद ने अकोला के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि अल्तमश पर स्कूल की एक लड़की को इशारा करने का इल्ज़ाम लगाकर उसके साथ मारपीट की गई थी, जबकि अल्तमश के वालिद का कहना है कि जब उसने स्कूल प्रिंसिपल के सामने लड़की से इस सिलसिले में पूछा तो उसने किसी भी इशारे से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं ज़िम्न में अकोला के एडवोकेट नजीब शेख ने बताया कि अल्तमश खुदकुशी केस में सियासी असर रसूख और दबाव के ज़रिए से इस मामले पर पर्दा डालने और मुलजिमों को बचाने की कोशिश की गई और पुलिस पर दबाव बनाकर FIR दर्ज करने से रोका गया। ताहम अल्तमश बेग के अहलखाना और अकोला शहर में अवामी एहतजाज के बाद अब केस दर्ज किया गया है। एडवोकेट नजीब शेख ने मजीद बताया कि FIR के दर्ज होते ही तमाम मुलजिमीन गायब हो चुके हैं। एडवोकेट ने स्कूल इंतज़ामिया पर मनसूबाबंद तरीक़ों और बहानों से मुस्लिम बच्चों को स्कूल से निकालने और उनका मुस्तकबिल तबाह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। और जनूबी अफ्रीकी मुल्क मलावी ने अपने 28 में से 23 अजला में खुश्क साली का ऐलान किया है और सदर का कहना है कि उसे फौरी तौर पर 200 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। मदरे के एक माह कबल हमसाया मुल्क ज़ाम्बिया ने भी मदद की अपील की थी। मलावी उस खित्ते का ताज़ा तरीन मुल्क है जिसकी खुराक की फराहमी शदीद खुश्की की वजह से मुतासिर हुए है, जिसका ताल्लुक़ अल नीनो मौसमी रुझान से बताया जाता है। एक तीसरा मुल्क ज़िम्बाब्वे में भी बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुई हैं और वो भी खुशहाली का ऐलान करने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के मुताबिक 35 बरसों में खित्ते की सूरत हाल बदतरीन है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। ज़िम्बाब्वे में तहफ़्फ़ुज़ के हुक्काम ने गुज़िश्ता साल के आखिर में कौमी पार्क में कम से कम 100 नायाब हाथियों के मरने की भी इत्तला दी थी, जिसकी वजह पानी का मौजूद न होना बताया जा रहा है। मलावी हालिया बरसों में बार बार मौसम की इंतहा का शिकार रहा है। ये जाहिर करता है कि किस तरह
دنیا کے کچھ غریب اور سب سے کمزور ممالک موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ عالمی آلودگی کے اخراج کے سب سے کم ذمہ دار ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خدشات کی نشاندہی کی تھی کہ جنوبی افریقہ میں متعدد ممالک النینو کے اثرات کی وجہ سے بھکمری کے دہانے پر ہیں۔ النینو ایک قدرتی بار بار چلنے والا موسمی رجحان ہے جس میں بحر الکاہل کے کچھ حصوں میں سمندر کی سطح کا گرم ہونا شامل ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی النینو کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔